तो 9वें अध्याय की शुरुआत में भगवान बता रहे हैं, इदम इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद् ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? माय डियर अर्जुना, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge, and realize and knowing which you shall be relieved of miseries of material existence. तो ये पॉइंट पे वापस कैसे आ गए? तो क्वेश्चन बनता है, राइट? तो एक चीज हमने देखी थी 7वें अध्याय में के अंत में, अर्जुन ने, भगवान ने बोला था क्या बोला था कि जरा मरण मोक्षाय, ये वाला 29वें श्लोक में बताया था कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृष्ण अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। Intelligent person who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in me, devotional service. They are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities. उसके अगले श्लोक में बताए थे साधिभूतादि देवम, हम तो यहाँ बताए थे, those in the full consciousness of me who know me the supreme lord to be the governing principle of the material manifestation of the demigod and of all the method of sacrifice can understand and know me the supreme person of godhead even at the time of death. तो जरा मरण मोक्षाय पिछले वाले श्लोक में जो आया है, क्या होता है कि जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से, जन्म मृत्यु is like greatest misery in this world. They can, so if they can remember the Lord at the time of death, they can be free from such things, right? So in the 8th chapter, Krishna begin with this one. Right? So Arjuna asked the question, what is Brahman? What is the self? What are fruitive activities? What is this material manifestation? What are the demigods? Please explain this to me. फिर बोलते हैं, who is the Lord of sacrifice and how does it live in the body of Madhusudanan? How can those engage in the devotional service at the time of death? So if someone remembers Krishna at the time of death, what will happen? Okay, whoever at the end of his life with his body remembering Krishna alone and attain Krishna's nature. So means what is the nature of the Krishna? Satchid Ananda. Sata means eternal, bliss means full of, sorry, Chit means full of knowledge, bliss means Ananda. So they will be free from miseries. They will be Sat, eternal, Chit full of knowledge, and blissful. Where there is eternity, where there is bliss and knowledge, there is no dukhalama sasvatam. That is the thing. So now how you can be like this thing, how you can attain all these things. So by answering all this question, Krishna mentioned being indestructible transcendental living entity is called Brahman. This eternal nature is called Adhyatma. Adhyatma means Satchidananda nature. Action pertaining to the development of the material bodies of the living entity is called karma or fruitive activities. Now, based of the embodied being, the physical nature, it is constantly changing. It's called Adi Bhuta, the universal form of the Lord, which include all the demigods like those of the sun and moon. Adi Deva and I, the Supreme Lord, represented as super soul in the heart of embodied being, am called Adi Agya. So Arjuna has asked 8 questions. Out of the 7 are answered here till this point. 8 has been answered from 5 to 28 until it goes on 9th also. So how? So when you go through this chapter, Krishna said, whoever remember him at the time of death, they will achieve the nature of Krishna. जो भगवान को याद करते हैं मृत्यु के समय, वो भगवान का समान ही भगवान के भाव को प्राप्त करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं.
लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ और चीज सोचेंगे तो भी भगवान के भाव को प्राप्त हो जाएगा। सो कृष्णा हियर टेल्स दैट जो भी चीज हम मृत्यु के समय याद करते हैं, ऐसा शरीर हमें अगले जन्म में मिलता है, जैसा यहाँ पर बता रहे हैं। तो अर्जुन को क्या बोला, यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ मी इन द फॉर्म ऑफ, फिर कैसे याद कर पाएंगे, तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा की हमने। भाई अरे थोड़ा सा पेन हो रहा है तब भी हम भगवान का नाम नहीं ले पाते, कुछ और आउच आउच याद आता है, माँ की माँ मतलब कोई माँ बोलते हैं, कोई आउच बोलते हैं, ऐसा कोई कुछ कोई भी हद करता है ऐसे, लेकिन कृष्णा नहीं बोल पाते हैं। कुछ थोड़ा सा चोट भी लगा तो कैसा हम याद कर पाएंगे। भगवान ने सारे टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कभी कभी आप क्या बोलते हैं, योगक्षेम वहां में हम तो आज लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कब टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होगी कि भगवान के धाम में कैसे जाएंगे, कब किस प्रकार से शरीर छोड़ेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे। ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन, बॉन्ड क्या बोलते हैं, डील, अगर डील ब्रेक हो गए तो क्या होगा, क्या करोगे तो आपको फायदा होगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दी गई है। और कैसे करना है वो भी, टर्म्स एंड कंडीशन में क्या करना है वो भी बताया गया है। तो आपको बोलते हैं दिन के समय में शरीर त्यागना है, उत्तरायण का समय होना चाहिए, तो ये सारे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन रखे हुए, सॉरी भगवान ने बताया है। तो आप ये देख सकते हैं 8वें अध्याय में अंत में क्या क्या बताया भगवान ने, बहुत सारे ऐसे हैं। और इस तरह से जब अगर योगी शरीर त्यागता तो क्या करता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो फिर वो फिर ब्रह्मा जी से लेकर कहीं पे भी हो, ये सब चीजों से जा रहे हैं। यहाँ पे सारे टर्म्स एंड कंडीशन में डिफरेंट टाइम्स ऑफ डेथ की मैंने प्रेजेंटेशन कल शेयर कर दिया है। सुप्रीमेसी ऑफ प्योर भक्ति इन अटेनिंग कृष्णा, तो बोलते हैं 24 टू वेज ऑफ लिविंग द बॉडी, और उसका कैंडिडेट और डेस्टिनेशन क्या है उसका, पाथ ऑफ लाइट फॉर ज्ञानी एंड योगी, वो कैंडिडेट है, दे गोज टू ब्रह्म ज्योति, पाथ ऑफ डार्कनेस फॉर कर्मीज हेवन। ठीक है, फिर बता दे पाथ ऑफ नो रिटर्न ऑफ द ज्ञानी ब्रह्म विद्या देव देव यज्ञ, yogi living the body is guided by following deities: deity of light, deity of day, deity of vaccine fortnight, deity of 6 months, deity of shukla paksha, deity of the year, deity of air, deity of sun, deity of moon, the associate of the lord takes him to brahman। अगर इस तरह तभी वो ब्रह्म ज्योति तक जाएगा, अभी भी। ठीक है, बोलते हैं path of return taken by the karmis pitru yagya, means karmi living the body is guided by following deities, so deity of smoke, deity of night जो रात में शरीर छोड़ता है, वेनिंग मून अमावस वाला जो होता है कृष्ण पक्ष होता है तब, deity of year, deity of पितृलोका, deity of ether, deity of moon, exhaust is pious credit and return to earth। so ये लोग वापस आते हैं। अभी ये सब टर्म्स एंड कंडीशन को कैसे ध्यान में रखेंगे भाई, ये सबको प्लेस करना पड़ेगा, कैसे करेंगे ये सब चीजें, मतलब योगियों को ये सब चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अरे डरो मत, कि भक्तों के लिए बहुत सारे कंसेशन है। तो वही सुप्रीमेसी ऑफ प्योर भक्ति नटेनिंग कृष्णा यहाँ पर बताया है, डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो वही 8वें अध्याय में और बताते हैं भगवान यहाँ पर लास्ट 2 श्लोक में। So although the devotee knows these 2 paths, or Arjuna, they never bewilder, therefore be always fixed in devotion। यहाँ पर बता रहे, तो भाई ये सब समय अगर कोई भक्ति करता है सच्चे हृदय से भगवान की, तो ना ये कोई उसको कोई इस सारी टर्म्स एंड कंडीशन से फ्री है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन उसको लागू नहीं होगी। सीधा भक्ति मतलब बैकडोर से आपको अंदर ले लिया जाएगा, सीधा स्टेज पे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो नीति श्रुति पार्थ ज्ञानी योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। तो बोलते हैं, ये तो पढ़ लिया हमने, कृष्ण इज हियर एडवाइजिंग अर्जुन दैट ही शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय डिफरेंट पाथ सोल कैन टेक व्हेन लिविंग द मटेरियल बॉडी। इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। A devotee of Supreme Lord should not worry whether he will depart by arrangement or by accident. उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको भी चिंता नहीं करना है। Devotee should be firmly established in Krishna consciousness and chant Hare Krishna. जप करते रहो, जब भी समय मिले जप करते रहो, भगवान की सेवा करते रहो, भगवान के भागवतम पढ़ते रहो, वेराइटीज रख लो ताकि मन उधर उधर भटके तब भी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में ही रहे। चलो जब में एकदम फोकस नहीं लग रहा है, ठीक है, कीर्तन सुन रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस में है हम लोग। 5 ऐसे बहुत सारे वेराइटी है भक्ति में भी। बेसिकली मन को हमें भक्ति के अंदर रखना है, तो भक्ति के अंदर फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स दिए गए हैं। जब मैं इंजीनियरिंग में था तो कंट्रोल थियरी हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आती थी। सबको हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, तो माइंड को भी हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। फोकस इज चॉइस, इट्स नॉट, इट डजंट कम बाय ओन, चॉइस करनी पड़ती है फोकस के लिए। तो योगा में बहुत फोकस चाहिए, लेकिन भक्ति में इतनी वैरायटी है। अगर चंचल मन वाला होगा तब भी भक्ति में वो एडजस्ट कर लेगा। कैसे? भक्ति में वैरायटी है, किसी को गाना अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को रंगोली बनाना अच्छा लगता है, भगवान के लिए बनाइए। किसी को डेकोरेशन अच्छा लगता है तो भगवान के डेकोरेशन करिए। किसी को खाना अच्छा बना लगता है तो भगवान के लिए खाइए, बच जाए तो हमें भी खिला दीजिए थोड़ा, ठीक। और फिर किसी को जप करना अच्छा लगता है वो भी कर सकते हैं, किसी को भगवान के बारे में किसी को बताना अच्छा लगता है तो वो भी करिए, किसी को लिखना अच्छा लगता है तो भगवान के बारे में लिखिए। शास्त्रों को कैसे और सिंपल तरह से लोगों को बताया जाए, इस प्रकार से लिखिए, इस प्रकार से उसको प्रेजेंट करिए, ठीक है। तो बहुत सारी एक्टिविटी है करने के लिए। तो माइंड को बेसिकली भक्ति से क्या होता है, जैसे योगा में क्या होता है, एक जगह बैठ के ही करना है, एक जगह बैठ के करना है। भक्ति में वैरायटी है तो उसमें माइंड को बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अगर इधर से निकल भी गए, जब में मन नहीं लगता तो चलो कुछ और कर लिया, चलो डीटी सिंगर कर लिया है, ठीक है, मतलब करिए 16 मतलब अगर हो सकता है एक साथ करने की कोशिश करिए, ध्यान पूर्वक करिए, नहीं हुआ तो चिंता मत करिए, लेकिन जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू, डोंट वरी, just follow the instruction. At other time you take your mind, hear some interesting Krishna katha, hear some, read some Krishna conscious book, बहुत सारी एक्टिविटी है। यात्रा पे चले जाइए, धाम में चले जाइए, बहुत सारी वैरायटी, ताकि माइंड को फॉल बैक होने की संभावना कम है। जैसे ऐसा एटमोस्फियर होना चाहिए। तो दिस इज कम बाय कल्चर, दिस इज कम बाय कल्चर। तो हमें श्रील प्रभुपाद ने इतना अच्छा कल्चर दे दिया। अगर हम मंदिर में रहते हैं तो अरे वहां पे बोला था हरे कृष्ण प्रभु जी प्रसाद लिया, खाने के लिए बोलते थे हरे कृष्ण। बोलते हैं कि कुछ लोग प्रसाद की सेवा करते हैं तो बोलते कृष्ण कृष्ण कृष्णा राइस लोगे, कृष्णा राइस, कृष्णा ऐड कर देते उधर भी, सबका नाम भी कृष्णाइज्ड हो गया। ड्रेस देख के लोग हरे कृष्णा, अरे हरे कृष्णा वाला है, मतलब लोगों को भी याद करा देते हैं कृष्ण का। सो इतना मतलब मन चंचल मन वाले भी फिट हो जाते हैं। सो that come by culture. This is Krishna conscious culture. So Srila Prabhupada, by the mercy of Lord Chaitanya, Lord Krishna and his spiritual master has given us wonderful culture. So we should engage ourselves there. इसीलिए बोला आपको चिंता मत करो, ठीक है, आ रहे तो भगवान के लिए गा लो, ऐसे भी होता है, बहुत सारी चीज है। सो
devotee should firmly establish in Krishna consciousness, chant Hare Krishna. He should know that concern. He should know that concern over either of these two paths is troublesome. कल मैंने ये बता के बोला इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन कैसे फुलफिल करेंगे भाई, कौन इंश्योर करेगा? एक चीटी काट जाए तो भगवान का नाम नहीं याद आता, क्या करेंगे हम? बोले भगवान बोल रहे ऐसा करो, ठीक है लगे रहो. The best way to absorb in Krishna consciousness is to be always devoted in his service, and this will make one's path to the spiritual kingdom safe, certain and direct. वो हमने डिस्कस कर लिया अभी. The word yoga yukta is especially significant in this verse. One who is firm in yoga is constantly engaged in Krishna consciousness in all his activities. Sri Rupa Goswami advised anasaktasya vishayan yatharam upyunjitah. One should be unattached to material affair and do everything in Krishna consciousness. And by this system, which is called yukta vairagya, one attain perfection. And therefore, the devotee is not disturbed by this description because he knows that his passage to the supreme abode is guaranteed by the devotional service. भगवान के अंदर योग युक्त, मतलब योग को भी भगवान की सेवा में लगाना है. बेसिकली कुछ भी हम कर रहे हैं भगवान की सेवा में लगना है. भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं वेदेषु, मतलब देखो भक्ति कितनी पावरफुल है. उस दिन हमने चर्चा की थी, अगर किसी ने कुआं भी खोदा है तो डिवोटी पानी ले लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोविड की तरह इन्फेक्शन लग जाता है भक्ति का. मतलब कोविड का इन्फेक्शन मार डालता है लेकिन ये मोक्ष करा देगा. मतलब किसी ने जो व्यक्ति एथिस्ट है उसने भी कुआं खोदा है और कुएं में से कोई भक्त जाते जाते उसने पानी पी लिया, उसको अज्ञात सुकृति मिल जाती है. मतलब उसको कोविड का इन्फेक्शन लग, जो कुएं मतलब कुएं में उसने पानी पिया अगर कोविड वाला मतलब ऐसा कुछ होता है जैसे मैं बता रहा हूँ, इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शन लगता है, तो ये पानी पीने जिसने कुआं खुदवाया उसको भी इन्फेक्शन लग जाता है. भक्ति ऐसी है, जो पिलाता है उसको भी लगता है, जो पिया है उसको भी लगता है, सॉरी जिसने कुआं खोदा उसको भी इन्फेक्शन लगता है. तो इतने पावरफुल है. तो आप सोच रखें कि मतलब ये सब चीजों की देखने की जरूरत ही नहीं है भक्ति में. यहाँ पे बता रहे वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अतयेति तत्सर्वं विदित्वा योगी परम स्थान उपेति च दैवम. तो बोलते हैं person who accept the path of devotional service is not bearer of the result derived from the studying the Vedas. हम लोग सीधा गीता और भगवत पढ़ते हैं, but Krishna says in 2.46 that what does he says? अरे वो कौन सा श्लोक है कुआं वाला, दिमाग से निकल गया. 2.46 में बताते हैं यावान अर्थ उदान पाने सर्वस्व संपृक्त दे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण्यस्य विज्ञानितः. by study just like earlier days छोटे छोटे, तो वहां पे बताया कि पहले छोटे छोटे पॉन्ड हुआ करते थे. वो एक पॉन्ड में से कपड़े धोने का पानी, एक में से बर्तन घिसने का, एक में से नहाने का, एक में से पीने का. तो लेकिन जब बड़ा सरोवर है तो एक ही बड़ा सरोवर सारे पर्पस सॉल्व कर देता है. उसी प्रकार वेदों का अलग अलग जो सेक्शन दिए हैं वो कैसे पता लग जाता है, वेदों का पर्पस जान के पता लग जाता है. वेदों का पर्पस क्या है भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बता रहे हैं. सर्वस्य चाहं विदस्नवष्ट मत्तस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे, सारे वेदों में वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य. जानने की क्या चीज है, वेदों का गोल क्या है, भगवान. वेदों का गोल है भगवान. अगर वो जान ले तो सारे वेद जान लिए. इसलिए जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, भगवान के बारे में जान के हम क्या करेंगे, उनकी सेवा में लगेंगे. ठीक है, तो वेदों का अपने आप हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है. we'll achieve that result. And performing sacrifice, what is the purpose of sacrifice? यज्ञ अर्थात कर्मणान्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म बनते मुक्त संग समाचार. एक लाइन में जो
तीसरे अध्याय के 9 में पूरा एक श्लोक बोला था, यहाँ पे एक वर्ड में बोल दिया, अंडरगोइंग ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का क्या मतलब है, भगवान छठे अध्याय के 46वें श्लोक में बोले थे, कौन से, ज्ञानिभ्यो मत अधिको कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो मत अधिको कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव। अर्जुन, योगी है वो तपस्वी से बढ़कर है, कर्मी से बढ़कर है, ज्ञानी से भी बढ़कर है। ऑस्टेरिटी का मतलब भी क्या है, भगवान के लिए करना है। गिविंग चैरिटी और परसिंग फिलोसॉफिकल एंड फ्रूटिव एक्टिविटीज। Simply by performing devotional service, you attain all this, and at the end, you reach supreme eternal abode. भगवान यहाँ पे एक चीज बता दिए यहाँ पर, कि क्या चीज बताए, कि भक्ति जो करते हैं उनको ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी जो भी है, सब चीजों से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लिखा है, तात्पर्य काफी बड़ा है, लेकिन एनीवे वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। So what is the summation of 7th and 8th chapter, which particularly deal with Krishna consciousness and devotional service? ठीक है, तो उस प्रकार से भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि भक्ति जो करते हैं उसको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो उसको आगे कंटिन्यू करते हुए 9th चैप्टर बोलते हैं, सो इट्स लाइक दिस 9th and 7th चैप्टर्स आर सिमिलर। आपको बहुत सारी सिमिलर चीजें देखने को मिलेगी। जैसे तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग समझाया था, लेकिन 5वें अध्याय में कर्म योग को और अच्छे से समझाया। चौथे अध्याय में ज्ञान की बात की, दिव्य ज्ञान, और 5वें अध्याय में वो दिव्य ज्ञान से हमें कैसे, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद कैसे सेवा में लगना है वो बताया। पहले तो कर्म योग की बात, फिर भगवान के बारे में ग्लोरीज जान, भगवान की ग्लोरी जानोगे तो और भगवान के लिए और कार्य करने की हमें और इच्छा होगी। पता है ये व्यक्ति इतने महान है, इसके लिए हम क्यों सेवा नहीं करेंगे, उसके लिए क्यों डायरेक्ट कर्म नहीं करेंगे, अच्छा लगेगा, तो बताने में भी अच्छा लगा। अरे कभी कभी हम बड़ाई करते हैं, अरे मैं भी कभी कभी बोलता था, एक बार मैं जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर से, तो मेरे एक बार मेरा शेक हैंड, जब ऐसे पब्लिक से जा रहे तो मैंने शेक हैंड कर लिया था उनसे। कभी कभी प्राइड से बोल लेता है, नरेंद्र मोदी से हमने भी हाथ मिलाया था, ठीक है। तो अगर ऐसे भौतिक जगत में ऐसे व्यक्तियों से मिलते तब भी हम इतना गर्व का फील करते हैं, भगवान के लिए ऐसा होगा तो क्यों गर्व फील नहीं करेंगे, राइट। तो वही इसी प्रकार से जब तीसरे अध्याय में भगवान, चौथे अध्याय में जब भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 5वें अध्याय में उन्होंने वापस भक्ति योग, ज्ञान कर्मयोग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब ज्ञान से माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के बाद कैसे और दृढ़ भक्ति में लग सकते हैं, कर्म जिसका हम कर्मयोग में, उसके बारे में बताया। 7वें योग में भगवान ने क्या बताया, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट, और 8वें अध्याय में हाउ टू अटेन दैट एब्सोल्यूट, अटेनिंग द सुप्रीम, उसके बारे में बताया। और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो एक योगिक पाथ से प्राप्त कर सकते हैं, और सीधा भक्ति के पाथ से, जहाँ पे एक जगह बैठने की कोई समय वो जरूरत नहीं है, आराम से आप जा सकते हैं, मतलब बहुत सारी वैरायटी है। तो वैरायटी कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान और 9वें अध्याय में उसका एक्शन करते हैं यही चीज को, कि ऐसा क्यों, तो ऐसा कैसे होगा, कि भाई भक्ति में लगने से, सिर्फ भक्ति में लगोगे तो आप मुझे कैसे प्राप्त कर लोगे, और वो भक्ति में लगने से आप ये सब प्राप्त कर लगे, तो ये सब कैसे होता है, हाउ टू डू दैट, भक्ति कैसे करनी है, ये सब चीजें 9वें अध्याय में बताया भगवान ने। 9वें अध्याय की शुरुआत इधर से होती है। तो आप होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, यस और नो टाइप करिए चैट में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आप सबके रिस्पॉन्स के लिए। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं
प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद्यत्वा मोक्षसे अशुभात्। जैसे मिजरिस मोक्षकामी लोग होते हैं, बोले ये तो ऐसे ही हो जाएगा पूरा। भगवान बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? He, the supreme personality of Godhead said, my dear Arjun, because you are never envious of me। तो भक्तों कैसे कैसे मिलता है, कैसे करना है वो भक्ति, इसलिए भगवान ये बता रहे हैं। अभी जैसे चौथे अध्याय में भगवान बोले थे, भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम ही तदुत्तमम्। अब मेरे भक्त और सखा इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भगवान ने थोड़ी और कंडीशन बता दी थोड़ी, कि भक्त और सखा होता है, डेफिनेटली उसमें ईर्षा नहीं होती है। सच्चे भक्त और सच्चे सखा होते हैं, उसको अंदर ईर्षा नहीं होती है। बिकॉज यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी। भगवान उसको ये ज्ञान क्यों बता रहे हैं, कैसे करना है भक्ति, जिसमें सारी इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको बाईपास कर किए बिना, विदाउट बीइंग कमिंग अंडर दोस टर्म्स एंड कंडीशन, वी कैन गो बैक टू गॉडहेड। कैसे करना है उसके बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन क्यों बता रहे हैं, पहले बोल रहे हैं कि वो ज्ञान के बारे में, उसका ज्ञान क्या है वो भगवान यहाँ पे बताने जा रहे हैं। वो अर्जुन को क्यों बता रहे हैं, पहले तो यहाँ पे बोल रहे हैं, बिकॉज यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी। ईर्षा नहीं होना चाहिए। अनुसूयवे, अनुसूयवे वर्ड यूज किया गया है। Because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization। और वो जान के क्या होगा, which knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence, knowing which you shall be relieved of the miseries of the material world। दुखालयम अशाश्वतम से बाहर हो जाएंगे हम ये। दुखालय है और अशाश्वत जो जगत है उससे हम परे हो जाएंगे, उनसे हम मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। उसके बारे में बता रहे हैं। अगले श्लोक में बताते हैं भगवान कि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। दिस नॉलेज इज द किंग ऑफ एजुकेशन। जो मैं आपको ज्ञान बताने जा रहा हूँ, किंग ऑफ एजुकेशन है। आपको एक चीज बताना रह गया, पिछले श्लोक में भगवान ये बोले गुह्यतमम, ठीक है। गुह्यतमम जो बोले, तो चौथे अध्याय को मैंने ये बताया था एक बार, वापस बोल रहा हूँ। दूसरे से लेकर छठे अध्याय है, उसको बोला गया है गुह्य ज्ञान। यहाँ पे मैटर और स्पिरिट के बारे में बताया गया है, मैटर और स्पिरिट का भेद। 7 से लेके 8 तक जो है बताया, उसको गुह्यतर बताया गया है, मोर कॉन्फिडेंशियल। 4th, 2nd to 6 इज कॉन्फिडेंशियल, 7 and 8 आर गुह्यतर, मोर कॉन्फिडेंशियल। वहां पे भगवान के बारे में डायरेक्टली बताया गया है इसलिए। और यहाँ पे अभी जो बताना गए हैं उसको बोले गुह्यतमम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। गुह्यतर, गुह्यतमम, कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। ज्ञान कैसा है, द किंग ऑफ नॉलेज, किंग ऑफ दिस नॉलेज इज द किंग ऑफ एजुकेशन एंड मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट। ये ऐसा क्यों बोलते हैं, मोस्ट सीक्रेट ऑफ सीक्रेट? पढ़ते हैं फिर भी समझ में नहीं आता, मतलब पूरा लिखा है जैसे ना पहली बुझाने वाली बात है। पहली कभी किसने बुझाई है? पहली जैसे बहुत सारे पहले आती थी पहले, राइट? जैसे कोड वर्ड, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का जमाना। आजकल तो 64 बिट एनक्रिप्शन आ गया, 32 बिट इंक्रिप्शन आ गया। पहले से पहले उसे मैसेज ट्रांसमिट किया करते थे, जब क्या बोलते हैं, जो कबूतर वाले थे ना, कबूतर से भेजते थे चिट्ठियां, या संदेशवाहक से भेजते थे चिट्ठियां, तो कोड वर्ड में लिखा जाता था। तो इसीलिए ये आराम से मतलब इतना अच्छे से बताया, फिर भी समझ में नहीं आता लोगों को। एग्जाम्पल कौन है? शिशुपाल। आजकल बहुत सारे लोग भगवत गीता बोलते हैं, लेकिन उसको भी मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, तो वो पॉइंट पे आते हैं अभी।
तो ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया। देखिए ये भी मतलब जिसको भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एनिमेशन में इंटरेस्ट है, लेकिन वो भी एनिमेट करके भी बैक टू गॉड जा सकते हैं। भक्ति इतनी ट्रांसेंडेंटल, कोई इतना याद करते रहेगा कि दारू का टेस्ट भी भगवान है। प्रभुपाद स्वयं बोले थे, नॉलेज ऑफ अनएलोड प्योर डिवोशन मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। सो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। When Krishna, यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छे से बता रहे थे। संस्कृत वर्ड अनुसूयवे in this verse is also very significant, बहुत important है। Generally the commentators, even if they are highly scholarly, are all envious of Krishna। बहुत सारे लोग envious होते हैं। तो मैंने बहुत बार बताया, मैं एक बार हाँ एक भी आईआईटी में एक बार मैं क्लास गीता के बारे में क्लास देने के लिए जा रहा था। तो एक व्यक्ति को मैंने पूछा, चलो गीता सीखोगे? तो बोले हाँ मैं सीखूंगा। तो मैंने पूछा क्यों? बोले मैं अथिस्ट हूँ, मुझे और अथिस्ट बनना है, ताकि गीता में पहले क्या है मैं समझूं और उसके बाद भगवान का अस्तित्व ही नाबूद कर दूं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। सो दीस आर एनवियस पीपल, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड भगवत गीता। तो बोलते हैं दे आर हाईली स्कॉलर आर all envious of Krishna, the supreme personality of Godhead. Even the most erudite scholar write on Bhagavad Gita very inaccurately because they are envious of Krishna. Their commentaries are useless. The commentaries given by devotee of the Lord are bona fide. इसलिए हमें भगवद गीता परंपरा में सुननी चाहिए। आपके बारे में अच्छे से कौन? आपके मित्र बता सकते हैं, आपके क्लोज करीबी व्यक्ति बता सकते हैं, जो आपके चहिते हो, हितैषी हो, ऐसे लोग, ना कि और जो आपके एनवियस लोग हैं वो नहीं बताएंगे, वो तो हमेशा बुरा ही बोलेंगे। Commentaries given by devotee of the Lord are bona fide. No one can explain Bhagavad Gita or give perfect knowledge of Krishna if he is envious. बहुत simple है समझने के लिए, right? One who criticizes the character of Krishna without knowing him is fool. Such a commentary should be very carefully avoided. Very carefully avoided. प्रभुपाद लिखे तात्पर्य में 9.1 पढ़े नहीं हम लोग। when Krishna is saying to surrender, not that we have to surrender to Krishna, actually we should surrender to Brahman, speaking through Krishna. Personal character of Krishna is immoral. He danced with the wives of other men. He had many wives. He is normal human like all of us. Don't take Krishna seriously. ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ऐसे बोलने वालों से। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो ज्ञान कैसे प्राप्त करना है? कृष्णा ग्लोरीफाई द नॉलेज ही इज अबाउट टू रिवील। जो नॉलेज बताने जा रहे हैं उसके बारे में भगवान यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं। सो कौन सा है? वही श्लोक पे हम थे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। Although bhakti is so joyful, the faithless and envious people do not perform bhakti and are thus deprived of the supreme goal of attaining Krishna. इसलिए राजगुह्यम बोला। गुह्यम समझना मुश्किल है, बड़े बड़े संस्कृत के स्कॉलर भी तब भी नहीं समझ पाएंगे, पहली बुझाने वाला काम है। ठीक है, पवित्र है, पवित्रमिदं उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। क्या है आगे देखिए यहाँ पर। तो किंग ऑफ ये हो गया। इट इज प्यूरेस्ट, पवित्रम इदम उत्तमम, इट इज प्यूरेस्ट नॉलेज एंड बिकॉज it gives direct perception of the self by realization. Pratyaksha avagamam, by direct experience. Avagamam means understood. Dharmyam, it is the perfection of religion.
और कैसा है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इट इज एवरलास्टिंग एंड इट इज जॉयफुली परफॉर्म। और भक्ति के लिए ना तो आपको ऐसे बैठना है, अरे लेट के भी जप करो, कृष्णा सुनते रहो, कीर्तन सुनते रहो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा खाओ, वहां पे तो खाना कम करना है, वो करना है, फीस्ट खाओ। एकादशी के दिन भी हम फास्ट नहीं करते, फीस्ट करते। इतना तो कंसेशन मिला और क्या करे। राइट, इतना कंसेशन में अच्छे से तो कर ही लेना चाहिए हम। जॉयफुली परफॉर्म, ठीक है। तो कैसे बताए, आप समझ गए हैं? मतलब कहने का मतलब नाचो गाओ, कृष्ण की मतलब कृष्ण के गाना नाचो गाओ, कृष्ण का गाना गाओ, कृष्ण के सामने नाचो, और थक जाओ तो कृष्ण का प्रसाद खाओ। नाचो गाओ, थक जाओ तो खाना खाओ, प्रसाद खाओ। ऐसा तो दिया, और क्या है बेसिकली। और पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, लोग पूरा हफ्ता काम करते हैं, वीकेंड आता है तो प्लान बनाते हैं, हम ट्रिप के लिए जाएंगे, ट्रिप के लिए एक लोकेशन ढूंढेंगे। चलो हमें जाना है एलिफेंटा केव। भी जब पहली बार आया था बॉम्बे, तो एलिफेंटा केव सुन के मुझे मुझे तो याद ही नहीं था एलिफेंटा केव बॉम्बे में है। वो दोस्त लोग बोले चलो एलिफेंटा केव चलते हैं। वहां गए, पहले पवाई से निकले, बॉम्बे से कहाँ पे CSTM तक शायद गेट उतरे थे शायद। जो भी स्टेशन था मुझे तो याद भी नहीं है अभी, लेकिन हाँ वहां उतर के गए थे, चलते चलते गए थे गेटवे ऑफ इंडिया तक। करीबन 2-3 घंटा लग गया चलते चलते जाने में। फिर 1.5 घंटा उधर, पानी से 1.5 घंटा लगता है शायद। वहां गए, चलते चलते ऊपर गए, पहाड़ी देख के आए। एक अच्छी चीज थी, बुद्ध भगवान का फोटो था, ऐसे मूर्तियां थी, प्रणाम तो किए, ठीक है। और वहां जाके क्या करें, वही खाने का मन किया, 2 घंटे में वापस आ गए। वहां जाके क्या, बहुत सारे कुछ लोग थे, वो क्या करते थे, म्यूजिक बजा के नाच रहे थे, गा रहे थे, खाना खा रहे थे, वही तो कर रहे थे। भक्ति में भी तो वही कर रहे हैं। सुबह हम 4:30 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं, 4:30 बजे भगवान के सामने कीर्तन करते नाचते हैं, ठीक है। वही सब नाच नाचो गाओ, हम तो डेली नाचते गाते हैं, और वही पैसा भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली ये सब चीजें हैं, कहने का मतलब इट इज एवरलास्टिंग एंड जॉयफुली परफॉर्म। ऐसा नहीं कि बोर हो जाओगे, बहुत है। तो आगे बोलते बहुत सिंपल है भक्ति, वेरी वेरी सिंपल, एवरलास्टिंग इट इज जॉयफुली परफॉर्म प्योरेस्ट। तो कैसे है देखिए, आगे बताते हैं यहाँ पर कि 8 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। तो नारद मुनि बताते हैं, मैं भी बहुत सिंपल तरह से आया, भक्ति में कोई है नहीं ज्यादा, मतलब डिफिकल्ट नहीं है। जॉयफुली परफॉर्म, become a great devotee, तो बोले I was born as an insignificant son of maid servant. This comes in Srimad Bhagavatam first canto, 4th and 5th chapter. Born as a insignificant son of maid servant. Okay. Once during a Chaturmas time, the 4 month of the rainy season, some exalted Vaishnava came to the Brahmana school. वो उनकी माँ दासी थी, कोई सेवा करने वाली थी, सेविका थी। Because she was attending to their need, I also got the opportunity to render personal service to them, and they blessed me with their costless mercy. नारद मुनि बता रहे हैं, नारद मुनि पहले से पहले कैसे हुआ था, व्यास देव जी को बता रहे हैं वो। And once with their permission, जब उनकी सेवा कर रहे थे, तो उनकी से मतलब क्या करते थे उनकी सेवा में, उनका बर्तन घिसना, उनके लिए सब करना, यही कर रहे थे, मंगल सेवा कर रहे थे। And once with their permission, I took the remnants of their food and all of my sins were eradicated. Just उनका जो मतलब उच्च कोटि के भक्त होते हैं, उनके उच्चिष्ट जूठा खाने से भी सारे पाप चले जाते हैं, ऐसे बोल रहे नारद मुनि। नारद मुनि बोल रहे हमारे परंपरा में आता है, वो जिन्होंने ज्ञान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया है, और वो व्यासदेव जी जिन्होंने ये भागवतम लिखा है, भगवत गीता लिखी है, मतलब भगवत गीता लिखी इन द सेंस कि उन्होंने व्यासदेव, संजय ने भी उसके थ्रू ही बोले थे, राइट, उनकी मर्जी से।
So once with their permission, I took the remnants of their food and all of my sins were eradicated. नारद मुनि बोल रहे हैं, हमारे आचार्य। नारद मुनि बोल रहे थे, हम कौन है? बोल रहे हैं, in their association I heard Krishna's activity, Krishna's attractive pastimes. My taste for such a topic increased at every step. मैं सुनना चाहिए भक्तों के संग में। I realized myself to be different from the gross and subtle body. I love those pure devotees greatly, and with very gentle behavior, I strictly followed their instruction. अरे पहले कुछ तो बोलते भगवान भक्तों को खाना खिलाओ, अरे कोई भक्तों का जूठा भी खा लेंगे तो उनको इन्फेक्शन हो जाएगा, भक्ति का इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब भक्ति इतनी पावरफुल है, उनके लिए पता नहीं कौन सी वैक्सीन लगेगी, बट इतना पावरफुल भक्ति है, कैसे रोक नहीं पाते, उसमें रोक ही नहीं पाते, ऐसे पावरफुल है भक्ति। और उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने उनकी सेवा की, तो हमने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में देखा था, with service and submissiveness, and seek inquisitiveness, what happened? You will be revealed when you serve the Mahatmas. What is that verse? 4. Tadvitti pranipatena praniprashnena shivaya updesyante tad jnanam jnaninastattva darshanam. To surrender to them, submit yourself, offer the service, then you inquire, then self-realized soul will reveal the knowledge to them. Why? Because they have seen the truth. When you get the knowledge by that way, you will never fall back. ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता, और वापस फॉल बैक होने की सुबह नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे नारद मुनि के साथ वो सेवा किए थे, ठीक है, उन्होंने कृष्ण कथा सुनी और उन्होंने रेमेनेंट्स भी लिया, बट उनके अंदर सेवा भाव था, सरेंडर भाव था, वो होना जरूरी है। सॉरी, फिर बोलते when they were about to depart, they instructed me in भक्ति योगा। अगर किसी को हम सेवा करते हैं, सरेंडर होती है, तो हमें इंस्ट्रक्शन देके जाते हैं। अगर हम आर्गुमेंटेटिव होंगे, ठीक है, चैलेंजिंग वे से हम पूछेंगे, if you don't do with submissive and surrender, people will not, people will avoid us. If you do that, people will avoid us. But if you have surrender, submissiveness, and the service attitude, they will like us, and they will tell you all the secrets. They will tell you all the secrets. But when they tell the secret that way, we don't take seriously. That's the problem. हमें लगता है कि हमें चैलेंज करके पूछेंगे, तब जो सुनेगा वही सही होगा। अरे मैंने हरा दिया इसलिए मुझे मिला। But that way, we don't get anything. But if we have service attitude, submissiveness, surrender, and if we inquire, self-realized soul will reveal the knowledge. So ऐसे नारद मुनि के साथ हुआ। The art, when they were about to depart, they instructed me in bhakti yoga, the art of using everything in the service of the Lord to ultimately return back home, back to Godhead. Even though my mother had passed away, I became alone. उनकी नारद मुनि की माँ चल बसी थी। उन्होंने क्या किया? He immediately left home and started for the north. उत्तर की ओर से उन्होंने प्रयाण कर दिया। बोले, since I had become very thirsty and fatigued, I drank the water and bathed to refresh myself. And then I sat down in the shade of great banyan tree and began meditating upon super soul within, as I had learned from my spiritual masters. जैसे ध्रुव महाराज को भी नारद मुनि ने इंस्ट्रक्शन दिया था, और यहाँ पे जो महात्माओं ने नारद मुनि को इंस्ट्रक्शन दिया था, और वो भी वही कर रहे थे। As soon as I concentrated my mind upon the lotus feet of the Lord, it became transformed due to transcendental love.
As tear fell down from my eyes, Lord Krishna appeared in the lotus of my heart. All my senses become spiritually enlivened. Very soon, Lord vanished from my sight. और ऐसे पलक झपक में कुछ पलकों में भगवान को दर्शन देके चले गए, लेकिन उस रूप इतना सुंदर था, बोले लॉर्ड वाइल रिमेनिंग इनविजिबल स्पोक टू मी, तुरंत चले गए और फिर अनदेखे में, मतलब दिख नहीं रहे थे, तब बोले भगवान, oh boy, you will not be able to see me again during this lifetime, because one who is not complete in the service and freed from all material contamination can hardly approach me. क्या बोले भगवान फिर? As a special favor, फिर भी भगवान उसको फेवर करके गए, I have shown myself to you just to increase your desire to come to me. इसके भगवान ऐसे टेस्ट दे देते हैं हमें. By my mercy, will always remember me and will continue making advancement in KC, even at the time of creation or annihilation. चलता रहेगा ऐसा. Thus, fully absorbed in thinking of Lord Krishna, in due course of time, I was freed from all material attachment I met with death. सारे भौतिक आसक्तियों से दूर होकर भगवान के भगवान अपना चित्त लगाकर उनका मृत्यु हुआ. Instantaneously, I received a transcendental form as a Narada. Since then, by the grace of Lord Vishnu, I have been traveling everywhere, both in the spiritual and material world, singing on Veena the glories of the Lord. ऐसे नारद मुनि बोल रहे हैं. देखिए नारद मुनि का आउटरीचिंग वर्क कितना है, कैसे कैसे लोगों को उद्धार कर दिया है. ठीक है, तो है श्रवण 4,300,000 years and multiplied by 1,000, and what it comes according to English calculation. 4,300,000. That is 12 hours. And add again 12 hours night. Then 8,600,000,000. So Krishna comes after this period. In one day, after one day, a Brahma. कीर्तन नवविधा भक्ति है. By chanting Yesha Deepaha, followed by the deity's Mula Mantra, offer 4 circles to the Lord. He's always meek and mild, with a warm and friendly smile, so simple in his living, singing all the while. He sings out Krishna's name. So you can see, bhakti has all the varieties: dancing, singing, honoring prasad, and everything. So even Narad Muni also did the simple thing. Bhakti is very simple, but why it is very supreme secret. That is mentioned here. The faithless cannot attain Krishna. Asraddha dana purusha dharmasyasya parantapah अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी. तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं तीसरे श्लोक में, जो अश्रद्धा, जो श्रद्धावान व्यक्ति नहीं है, श्रद्धा का अगेन वापस आया है. Those who are not faithful in the devotional service cannot attain me. अरे फॉरगेट, मैंने श्रद्धा के बारे में बोल दिया है ना, वन इन सिंपल लाइन, faith or no faith, fact is fact.
आपको विश्वास है या नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। फेथ और नो फेथ, फैक्ट इज फैक्ट। तो श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना श्रद्धा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और सिंपल मतलब खाना भी नहीं खा पाएंगे। मैं कितनी बार बोला है कि यहाँ पे छत के नीचे भी बैठ नहीं सकते हम लोग, श्रद्धा इतनी इंपॉर्टेंट है। फिर भक्ति में जहाँ पे सारी चीज, भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम, बोलते हैं सो दोज हु आर नॉट फेथफुल इन दिस डिवोशनल सर्विस कैन नॉट अटेन कृष्णा एंड देयरफॉर दे रिटर्न टू द पाथ ऑफ बर्थ एंड डेथ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। और वही लोग जिनको श्रद्धा नहीं है भगवान के ऊपर, ये जन्म और मृत्यु के चक्र रूपी संसार में आते रहते हैं। भौतिक जगह में जो दुखालय अशाश्वत है उसमें आते रहते हैं। आप देखेंगे तो अभी 7वें अध्याय में भी भगवान ने बोला था, पहले श्लोक में आपको याद होगा कुछ, द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड सेज, हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल consciousness of me with mind attached to me you can know me in full, free from doubt. I shall declare unto you this knowledge in full, both phenomenal and luminous. This being known, nothing further shall remain for you to know. यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो देखिए पैरेलल चल रहा है यहाँ पे पूरा। आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं, अभी यहाँ तक उन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया क्या, जो ज्ञान बताने जा रहा हूँ वो ज्ञान कैसा है उसके बारे में उन्होंने 9.3 1 2 3 उसका ग्लोरिफिकेशन किया। पहले तो क्यों बता रहा हूँ, वो ज्ञान कैसा है वो बताया, और उसको कौन समझ नहीं पाएगा वो बता दिया भगवान ने। वो ज्ञान क्या है वो भगवान अभी इस श्लोक से बता रहे हैं। तो हम कुछ श्लोक कवर करेंगे 5-6 मिनट और उसके बाद समाप्त कर देंगे। तो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे चैप्टर में। तो 9.4 में बोल रहे भगवान, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेस अवस्थितः। बता रहे हैं, बाय मी इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड, all being are me but I am not in them। जैसे तो सिमिलर श्लोक हो गया 7.4 मत्तपर, सॉरी नॉट 7.4 7.6 मत्तपरतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रं मणिगणे। ये वह 7.5 में 6 में, ओके हाँ ये रहा 7.7 में सिमिलर श्लोक से पूरे, ठीक है। बोल रहे हैं, बाय मी इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड। मतलब कैसे, सूत्र मणि गण इव, इस सूत्र मणि की बात की थी जैसे भगवान ने, जैसे मोतियों की माला की बात की थी, ऐसे यहाँ पर भी बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा पैरेलल है इसमें, थोड़ा नहीं पूरा पैरेलल है। अगले श्लोक में बता रहे हैं, तो ये श्लोक तो मैंने समझा, मतलब अब समझ गए, जैसे मोतियों की तरह मोतियों की माला होती है, तो उसके अंदर जो धागा होता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या है, वो धागे के बिना मोतियों की माला असंभव है। उसी प्रकार भगवान भी दिख नहीं रहे डायरेक्टली, लेकिन भगवान है, वो हमारी अपूर्ण दृष्टि है, त्रुटि युक्त दृष्टि है कि हम नहीं देख पाते उनको। इसलिए बता रहा है, बाय मी इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड, ऑल बीइंग्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। वो भी 7.12 वगैरह में वही बताया था। यहाँ पर भी क्या बोले, इनसे कोई ऊपर है नहीं, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पॉल्स आर स्ट्रंग ऑन थ्रेड। इधर बता रहे हैं, तो सी बहुत सारे सेंटेंस इस तरह से रिपीट हो रहे हैं। अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वर भूत भ्रूण च भूतस्थो
ममात्मा भूत भावना, and yet everything that is created does not rest in me. मतलब कहने का मतलब क्या है? पहले बोले सब मेरे में है, और अभी बोल रहे मेरे ऊपर आश्रित है नहीं। कहने का मतलब क्या है? So, behold my mystic opulence, although I am the maintainer of all living entities, although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of the creation. तो मेरे में आश्रित नहीं है मतलब क्या है? उसको कैसे समझा जाए? अभी तक तो बोल रहे सब मेरे ऊपर टिका हुआ है। 10वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में बताएंगे, अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ मेरे 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 में से ही आया है। यहाँ पे बोल रहे हैं न च मत्स्थानि भूतानि, एंड यट एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी। उसका मतलब क्या है? तो anyway, हाँ, तो उसका मतलब क्या है कि एंड यट एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी, मतलब भगवान उससे अफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, कि भाई उनको मतलब उन्होंने सृष्टि तो बना दी, लेकिन सृष्टि में जो भी चीज होगा, जैसे 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में बोला था भगवान के, मैं तीनों गुणों से परे हूँ, सारी चीज तो आ गई, ठीक है, लेकिन भगवान उसके अंदर जो क्रिया हो रही है, सुख दुख हो रहे हैं, ठीक है, वो जीवात्मा जो लोग हैं उनके कर्म का वो फल है। ठीक है, ये सब चीजें भगवान की वजह से, मतलब भगवान उसके जिम्मेदार नहीं है। जैसे हमने उस दिन के जीवास आर इनिशिएटर, फिर लॉर्ड इज द सैंक्शनर, एंड व्हाट इज दैट, 3 मोड्स आर फैसिलिटेटर्स, इस प्रकार से बता रहे हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं पश्चिमे योगेश्वरम, behold my mystic opulence, although I am the maintainer of all living entities and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation. मैं मेंटेनर हूँ सारे जीवात्माओं का, मैं सब जगह पे हूँ। I am not the part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा उदाहरण देता है इस प्रकार से, कैसे कंपनी का मालिक होता है, चेयरमैन होता है, बॉम्बे में बैठा होता है, ये पूरी कंपनी चलती रहती है उनकी एनर्जी से। तो भगवान का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है, वो भगवान की शक्ति से चलता है पूरा। जैसे चेयरमैन की पूरी शक्ति से चलते हैं, पावर से, एक इंस्ट्रक्शन देंगे तो सब नीचे तक फैल जाते हैं। इस तरह से भगवान बहुत सारी एजेंसियां है, एनर्जी है जो सारे कार्य चलाती है। ठीक है, तो कैसे अभी भगवान मेंटेन कर रहे हैं वो इधर बता रहे हैं। 8 हो गए। यथाकास्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि उपधारया। To understand that this mighty wind blowing everywhere, rest always in the sky, all created being rest in me. जैसा हवा होती है, ऐसे लग रहा है ऐसे घूम रही है सारे आकाश में, लेकिन आकाश के बाहर नहीं है, मतलब we are within the limit of that space। उसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे जीव है, घूमते नजर आ रहे हैं, चलते फिरते नजर आ रहे हैं, लेकिन they are not beyond the boundary of the Lord, they are within the Lord। पहले में बोल रहे they are not rest in me, यहाँ पे बोल रहे all being rest in me। कैसे समझे? ठीक है, एनीवे तो उसकी ज्यादा डिटेल में चर्चा में कल करूंगा। यहाँ बता सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृत्यांति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पाद विसृजामि अहम। ओ सन ऑफ कुंती, at the end of millennium all material manifestation enter into my nature, at the beginning of another millennium by my potency I create them again। पहले 2 श्लोक में मेंटेनेंस की बात की, यहाँ पे क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन की बात की है। तो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, तो हम आगे की चर्चा कल करेंगे। तो कल ये चैप्टर हम समाप्त करेंगे। आज थोड़ा मुझे
उसमें समाप्त नहीं, मतलब 8वें की तरह समाप्त नहीं करना था, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, तो लेकिन कल उसको समाप्त करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।